کراچی والوں ہوشیار، ابھی امتحان ختم نہیں ہوا، بادل پھر سے برسیں گے، موسلادھار بارش ہوگی، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، پانی نے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی، اب اور برسات سے کیا حال ہوگا، شہر والے پریشان۔ کراچی میں 89 سال کی ریکارڈ بارش، برسنے والے بادلوں نے تباہی مچا دی، نالے اوور فلو، سکھر ندی کا بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل، اسپتال ہو یا احاطہ عدالت کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ کراچی والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم کا وفاقی اداروں کو ریلیف کارروائیاں کرنے کا حکم، شہر کے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، خوراک کی فراہمی۔ ڈوبتے کراچی پر بھی سیاست، وفاق اور سندھ ایک بار پھر آمنے سامنے، ایک دوسرے پر شہر کو تباہ کرنے کے الزامات۔ کراچی میں نالوں کی صفائی منصوبے کی تکمیل 1 سال میں ہوگی، وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، لکھا منظوری ملتے ہی ستمبر میں کام شروع ہو جائے گا۔ یہ الیکٹرک کی ڈھائی، کراچی میں بجلی بحران، فالٹس کے نام پر نارتھ ناظم آباد، سولجر بازار سمیت کئی علاقوں کی بتی گل۔ اندرون سندھ بادلوں کی گھن گرج، حیدرآباد میں طوفانی بارش، ٹھٹھا لاڑکانہ سجاول میں بھی بادل کھل کر برسے، بلوچستان میں بھی بارش سے ندی نالوں میں طغیانے۔ آئندہ 48 گھنٹے اہم، راولپنڈی سمیت کئی علاقوں میں شدید بارش ہونے کا امکان، نالالئی میں طغیانی اور دریائے جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، الرٹ جاری۔ وزیر اعظم کا گندم کی امدادی قیمت بڑھانے کا فیصلہ، اقدام سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، وزیر خوراک کہتے ہیں درآمدی گندم کے پہنچتے ہی قیمت میں واضح کمی ہوئی، ذخیرہ اندوزوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ گیس سستی نہیں ہوگی، حکومت نے قیمت میں 6% تک کمی کی، اوگرا سفارشات مسترد کر دی۔ شہزاد اکبر کو وزیر اعظم کے مشیر کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ FATF پر حکومت کو شکست نہیں ہوئی، اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے، شیخ رشید کا طنز، فیاض الحسن کہتے ہیں اگر نواز شریف واپس نہ آئے تو شہباز نااہل ہو سکتے ہیں۔ حکومت کرپشن کی محافظ، وزیر اعظم نے شوگر مافیا کو NRO دیا، احسن اقبال کے لفظی وار، کہا 1 سال ہو چکا، نیب نارووال اسپورٹ سٹی کیس میں ریفرنس دائر نہ کر سکا۔ آئینی نکتے کی غلط تشریح پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پر برہم، دماغ سیے، بیوروکریسی نے ملک کو تباہ کر دیا، کیوں نہ ابھی چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری کو جیل بھجوا دیں۔ وزیر اعظم کو افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کا ٹیلی فون، امن عمل میں پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر، عمران خان نے کہا افغان مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہے، انٹرا افغان بات چیت کے جلد آغاز کے منتظر ہیں۔ بوند بھر بھی اصغر کو مل نہیں سکا پانی، کہہ رہی ہے یہ دل کی آج مجھ سے طغیانی۔ 6 محرم الحرام، دشت کربلا کے کمسن شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام سے منسوب، ہرملا نے 3 دن کے پیاسے معصوم پر تیر چلا کر ظلم کی ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा साथियों की अजीम कुर्बानी। शाम, लेबनान, फलस्तीन, इराक, सऊदी अरब में जुलूस और मजालिस। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूयॉर्क में भी फर्शे अज़ा बिछ गया। चारसदा से कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। निशानदेही पर बारूदी मवाद और 3 दस्ती बम बरामद। मकबूजा कश्मीर में भाती बर्बरियत, वादी में भूख और बीमारी के डेरे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, अक़वाम आलम खामोश। और सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी। साहिब हैसियत अफराद की रोटियों की शक्ल में मदद। मुस्तहिक अफराद भूख मिटा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी की सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन सुमामीन। मॉनसून ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। शहर कायद में बारिश होकर 89 साला रिकॉर्ड टूट गया। डिफेंस से सुरजानी, हर तरफ पानी ही पानी। बारिशों का सिलसिला अभी बाकी है। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। कराची वाले अल्लाह के हवाले। शहर कायद पानी पानी हो गया। बारिशों के 7वें स्पेल ने भी कराची में तबाही और बर्बादी के निशान छोड़े। कहीं सड़कें पानी में बह गईं तो कहीं पुल टूट गए। कहीं नदियों में शगाफ पड़ने से शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। कुरंगी काजवे हो या मलीर नदी, नेशनल हाईवे हो या डिफेंस और क्लिफ्टन के पोश एरियाज, हर जगह बारिश के पानी ने तबाही के नक्श छोड़े। हॉक्सबे हो या ट्रक स्टैंड, गोलीमार हो या लसबेला, बारिश से सड़कें बह गईं, नदी में शगाफ पड़ गए, काजवे बंद करना पड़ा। गोलीमार से लसबेला तक सड़क भी न बच सकी। ये है शहर कराची का हाल। खुई गोट, दरसानो चनू, हसन पवर गोट समेत कराची के कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मलीर और नवाई इलाकों में लोग फंस गए जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के बायस हब डैम भरने के करीब है। 339 फुट पानी जखीरा करने की सलाहियत रखने वाले हब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। बारिशों के बाद कहीं बच्चे डूबे तो कहीं करंट लगने से अमवात हुई। इन अमवात का जिम्मेदार कौन है? क्या सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारे अपनी नाकामियों को तस्लीम करेंगे? क्या शहरियों के नुकसानात का इजाला किया जा सकेगा? शहरी इलाकों में बारिश की तबाहकारियों से अवाम बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत, शहर की सियासी क़यादत और शहरी हुकूमत एक दूसरे पर सिर्फ इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं, जबकि अवाम मसाइल का हल चाहते हैं, क्योंकि बारिश की फिल्म अभी बाकी है। बादल बरसे और पानी शहर का मकीन हो गया। शहर की गली मोहल्ले, गलियां और बाजारों में इसका बसेरा है। कराची में होने वाली बारिश का पानी ताहाल न निकाला जा सका। कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। दादा भाई टाउन, सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट समेत मुतादिद इलाकों में पानी मौजूद है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट से पानी की निकासी हो गई, ताहम बड़े नुकसान पर ताजिर परेशान। में बारिश का पानी डेरे जमाए बैठा है। गलियों, मोहल्लों और शाहराहों पर खड़ा पानी ना निकाला जा सका। घरों के साथ गाड़ियां भी डूब गई हैं। शाहराह फैसल तालाब का मंजर पेश कर रही है, जबकि तारिक रोड पर बारिश के पानी ने ट्रैफिक का निजाम दरम बरम कर दिया है। आई चंदर रीगर रोड पर भी कई फुट पानी जमा है, जबकि 5 स्टार चुरंगी की सड़कों पर गाड़ियां पानी में फंसी हुई है। नाजमाबाद में मरकजी शाहराह सैलाबी रेले के बायस ज़ेरे आब आ गई है। बलोच कॉलोनी के करीब दादा भाई टाउन ज़ेरे आब आ गया। इलाके में पानी इतना के मकीन महसूर होकर रह गए। रात को मलीर नदी में तुहियानी से दादा भाई बंद में शगाफ पड़ गया था। बारिश के पानी के बायस गुजरने वाले परेशान हैं। कुरंगी काजवे ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में पानी की निकासी तो हो गई, ताम गुज़श्ता रोज कई फुट पानी जमा होने से दुकानदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सरजानी टाउन के यूसुफ गोट की हालत भी जूं की तू है। इलाका पानी से भरा है, लोग घरों तक महदूद है। शाहराह फैसल और आराम बाग की फर्नीचर मार्केटें भी पानी दाखिल हो गया है। खारादार और बिजनेस रोड
रोड पर होटल और दुकानों में पानी दाखिल होने से कारोबार ठप हो गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जोर मुनव्वर चुरंगी के करीब लैंड स्लाइडिंग से दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तोदे तले दब गई हैं। कराची में बारिश से हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हाक्स बे पर बच्चा जौहर में डूबकर जाँ बहक हो गया। भैंस कॉलोनी में दीवार गिरने से बच्चा चल बसा और 2 अफराद की मौत करंट लगने से हुई। कराची में मानसून बारिशों की तबाहकारियां, मुतासिरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासिरा इलाकों में खड़ा पानी निकालने के साथ साथ मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया जा रहा है। आर्मी इंजीनियर्स मशीनरी हैवी प्लांट के जरिए रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। कश्तियों के जरिए मुतासिरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली भी जारी है। मानसून बारिशों के बाद शहर कायद के बासियों का जीना मुहाल। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा चंद रोज तक फिर बारिशों की पेशगोई कर दी है। मजीद बात करते हैं तर्जुमान पीटीएम में खालिद मलिक साहब से। खालिद साहब, कराची वालों का इम्तिहान अभी भी बाकी है? जी, अभी आज रात को एक और स्पेल आ रहा है और उसकी वजह से कराची के गिरदुनवा में रेन होने के चांसेस हैं, लेकिन एक ये बात है कि इसका जो फोकस है वो कराची की साइड पे नहीं है। वो आपके पास थरपाकर, बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद साइड पे, इस वजह से ये कहा जा सकता है कि उन एरियाज में तो रेन ज्यादा होगी, लेकिन कराची में रेन इतनी ज्यादा शिद्दत से नहीं होगी जितने इससे पहले स्पेल में आई। लेकिन फिर भी ये जरूर कहेंगे कि इस टाइम ऑलरेडी जो है वो आइसोलेशन सैचुरेशन में हुई है और अच्छे खासे रेन होने के बाद थोड़ी सी भी जो रेन है वो कराची के शहरियों को और ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती। खालिद साहब, आपने कहा कि थरपारकर और दीगर मुल्का इलाकों में रेन के हवाले से भी पेशगोई की गई है। ये बताइएगा, क्या हैदराबाद, मीरपुर खास और जो थरपारकर तक का इलाका है उसमें भी सूरत हाल ऐसी ही देखने को मिलेगी? फिर बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है और वहाँ पे स्पेशली नगर पार्कर के जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आने के चांसेस हैं और ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आप हैदराबाद और पिट्ठी और इन बदीन के एरिया से रहेगी, लेकिन ज्यादा नॉर्थ पे नहीं उठेगी। लेकिन ये जो सारी बेल्ट है, इस बेल्ट में अच्छी रेन होने के चांसेस। खालिद साहब, ये बताइएगा कितना लंबा स्पेल हो सकता है ये रेन का? ये पॉसिबिलिटी है कि ये आज रात और कल सुबह के टाइम तक ये जो है स्पेल खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पीएमडी खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सूरत हाल पर रेन के हवाले से बात कर रहे थे। कराची के इलाके यासीनाबाद में डूबने वाले 2 बच्चों का ताहाल पता न चल सका। इलाका मकीनों का कहना है हुकूमत की जानिब से अब तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। शाहिद एजाज से मजीद जानेंगे। जी शाहिद एजाज, बताइएगा इलाका मकीनों का मजीद क्या कहना है? हालत था जिसमें गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो है बच्चे डूबे थे और जिनका अभी तक जो है लापता है, इसके साथ मिल रहा इलाका मकीन भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा जो बच्चे डूबे थे इसके बाद क्या कोई हिकमत अमली आई? इसके बाद हमने FIR भी कटवाई, हमने रेंजर्स वालों को भी बोला, पुलिस वालों को भी बोला, मजीद इलाके का जो सियासी है उनको भी बोला, अभी तक कोई किसी ने काम नहीं किया। ये सब जो है बच्चे, बड़े, औरतें रोड पे आ गई, कोई काम करने को। मजीद इलाके का जो सियासी है उनको भी बोला, अभी तक कोई किसी ने काम नहीं किया। ये सब जो है बच्चे, बड़े, औरतें रोड पे आ गई, कोई काम करने को तैयार नहीं है। सब मौजूद है। अभी SHO साहब आया, वो सहारा दे के चले गए, अभी तक कोई काम नहीं किया। तकरीबन 4 बजे के करीब ये बच्चा अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है जो क्या हुआ कैसे हुआ, सिर्फ आ गया ना, ये खड्डा बहुत बड़ा करवा दिया, चला गया सर। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरियों के साथ ये इलाका मकीन खड़े यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई अभी तक हिकमत अमली जारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे लोग खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ की इंतजामिया आती है और वो बोलते हैं एहतजाज ना करो। कोई भी अभी तक यहाँ पे कार्रवाई कोई सुनने वाला नहीं है। शहर कराची में जगह जगह जो है हादसा पेश आ रहे हैं। लियारी है, इसके अलावा जो है सरजानी टाउन है, मलिर है इसकी जगह। इसके साथ ये कराची का इलाका यासीनाबाद, यहाँ पर भी जो है एक गड़ा मौजूद था जिसमें 2 बच्चे जो है डूब गए। अभी तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक कोई रेस्क्यू की तरफ से हमला यहाँ नहीं पहुंचा। यहाँ पर 24 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई यहाँ पे कार्रवाई सामने नहीं आई। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के लिए खुशखबरी, हब डैम पानी से भर गया। बलूचिस्तान में होने वाली हालिया बारिशों के नतीजे में हब डैम में पानी की सतह 300 फीट से बुलंद हो गई, जिसके बाद डैम से कराची को 6 माह तक पानी फराहम किया जा सकेगा।
रवां साल मानसून के छठे स्पेल में कराची और सिंध के अलावा बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में भी शदीद बारिशें हुई, जिसमें कैचमेंट एरिया से पानी के गैर मामूली रेले हब डैम पहुंच रहे हैं। 3 रोज कबल तक हब डैम में पानी की सतह 330 फीट पर थी, जो 334 फीट तक पहुंच चुकी थी और पानी की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। जराये के मुताबिक 45 किलोमीटर तक के रकबे पर फैले और 350 फीट लेवल के हब डैम में 339 फीट की सतह तक पानी जमा किया जा सकता है। डैम भरने के बाद इजाफी पानी स्पिलवेज से खारिज होकर हब नदी के रास्ते समंदर में गिरने लगता है। हब डैम में पानी के जखीरे को महकमा ज़राअत और कराची वाटर बोर्ड ने आइंदा 2.5 से 3 साल की जरूरियात के लिए काफी करार दिया है। आइंदा साल अगर मजीद बारिशें न हुई तो हब डैम साल 2023 तक बलूचिस्तान के कई इलाकों को ज़राई इस्तेमाल और कराची को पीने का पानी सप्लाई करता रहेगा। रवां साल मानसून सीजन की गैर मामूली बारिशों से हब डैम में लगभग 30 फीट पानी पहुंच चुका है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात जाहिर हो गए। चीन, तुर्की, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया समेत कई ममालिक में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी पानी सैकड़ों घर बहा ले गया। शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। तुर्की के शुमाली इलाकों में तूफानी बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। बाज़ इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी में कारें और बसें तक बह गईं। कई घर तबाह हो गए। मकामी इंतजामिया के मुताबिक अब तक 20 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। चीन के इलाके योंगटिंग में 60 मिलीमीटर बारिश से दरिया उबल पड़े और पानी घरों को बहा ले गया। अब तक 20 अफराद के हलाक होने की इतलात है। उधर शहरी अपनी मदद आप के तहत महफूज जगहों पर मुंतकिल हो रहे हैं। इंडोनेशिया में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में पानी दाखिल होने से कई घर जमीन बोस। इमदादी इदारों ने मुतासिर अफराद को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। सैलाबी पानी इंडस्ट्रियल जोन में दाखिल हुआ तो कई सनतें बंद हो गयी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी पानी के बहाव में यकदम तेजी आने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तेज रफ्तार पानी से कई पुल बह गए हैं, जबकि नशीबी इलाकों में पानी घरों के अंदर घुस गया। अफगानिस्तान के सूबा परवान में सैलाब ने तबाही मचा दी। 70 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हो गए। मुतासिर अफराद की सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मकामात में मुंतकिली का अमल जारी है, जबकि सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब के बाद वसी पैमाने पर तबाही फैल गई। फसलें भी शदीद मुतासिर हुई हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजहब, सकाफत और भाईचारे की बुनियाद पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान मुफाहमती कौंसिल के सरबराह से अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफा ताल्लुकात समेत अफगान अमल से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू की। पुरअमन अफगानिस्तान का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान कौमी मुफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक अफगान ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान 2 तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक अफगान ताल्लुकात मजहब, सकाफत और भाईचारे पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगान मसले का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के जल्द आगाज का मुंतज़िर है। अफगान कौमी मुफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने ट्विटर बयान में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ पाक अफगान ताल्लुकात के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को कम करने और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने दौरा पाकिस्तान की दावत देने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात का भरपूर अपोजिशन पर वार। बोले जाती मुफादात को मुल्की मुफादात पर तरजीह दी जा रही है। अपोजिशन में वैसे तो कोई इत्तेफाक नहीं, लेकिन जब बात करप्शन की हो तो इनका 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि केसेस खत्म किए जाएं। उनका मजीद कहना था सिंध हुकूमत से 14 खरब का हिसाब लेंगे। सिंध की तबाही की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आयद होती है। किस तरह से हम जाती मफादात से बालातर होके कौमी मफादात की तरफ बढ़े और दूसरी तरफ अपोजिशन जहां तक आपने कहा कि वो एक पेज पे हो रही है, वो एक पेज पे हो ही नहीं सकती और न एक पेज पे है। मौलाना फजलुर रहमान है तो उन्होंने छोटी पार्टियों का इजलास बुलाया हुआ है। उनकी जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है वो भी कामयाब नहीं थी। पीपल्स पार्टी को नून पे एतबार नहीं है, नून को पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं है। तो ये एक ऐसा
इनके मफादात का एक इनका कॉमन मफाद जरूर है, वो ये है कि जो भी इनके खिलाफ केसेस हैं, जो भी दौलत को बचाने के लिए ये इकट्ठे हो सकते हैं, ये वन पॉइंट एजेंडा है जिस पे कि अपोजिशन इकट्ठी है। बाकी जो है तो उनको कोई ना इकट्ठ है और ना उसमें उनमें वो सलाहियत है कि वो कौम को हुकूमत के खिलाफ उकसा सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मुखालिफिन को निशाना बनाया जाए। इमरान खान से कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। वजीर आजम ने शुगर माफिया को एनआरओ दे दिया। हुकूमत करप्शन की सबसे बड़ी मुहाफिज है। ये हुकूमत सिर्फ बोहतान के ऊपर, किरदार कुशी के ऊपर और झूठ के ऊपर अपना केस बनाती है। इसका सिर्फ एक एजेंडा है कि मुखालफिन की किरदार कुशी करो। और मैं इमरान खान साहब के कल के बयान पर कहना चाहता हूं, इमरान अहमद न्याजी साहब, अपोजिशन आपसे एनआरओ नहीं मांग रही, आप तो एनआरओ दे चुके हैं। जब रात की तारीकी में आपने जहांगीर तरीन को फरार कराया था तो आपने शुगर माफिया को एनआरओ दे दिया था। जब आपने अपने वजीर आला की पुश्त पे हाथ रखा और कहा कि ये नहीं जा रहा तो आपने आटा माफिया को भी एनआरओ दे दिया। जब आपने अपने वजीर सेहत को दवाई स्कैंडल में हटा दिया लेकिन उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया तो आपने उसको भी एनआरओ दे दिया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा का केस बहुत संजीदा है, दोनों अंदर जा सकते हैं। रेफरेंस दायर होने तक उस्मान बुजदार कहीं नहीं जा रहे। फजलुर रहमान बच्चों को लेकर निकले तो निकले, वरना कोई नहीं निकलेगा। ऑपोजिशन को पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं, ये भूखों का टोला है। से दिलचस्पी नहीं, ये इक़्तिदार के भूखों का टोला है और उनकी असल हकीकत ये है कि फजलुर रहमान भी उन पर एतबार नहीं करता। ये पहली दफा इस मुल्क में हुआ है कि मजहबी जमात का सरबरा कह रहा है कि नहीं, मुझे आप पे एतबार नहीं है, मुझे तहरीर दो। और जो उन्होंने शराइत रखी है उनका एक ही मुतालबा है कि नैब को खत्म किया जाए, उनका कोई दूसरा मुतालबा नहीं है। मैं अगर वो बातें बताऊंगा जो मीटिंग में उन्होंने की हैं उनके लीडरों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने, शायद मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मीटिंग के अंदर की बातें। उनका एक ही मुतालबा है कि हमसे हाथों पैरों के अंगूठे लगा लो लेकिन नैब को खत्म करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर को मुशीर बराए एहतसाब के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें बतौर मुशीर नैब और FIA में मुदाखलत से रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला ने शहजाद अकबर को मुशीर बराए एहतसाब के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी फैसले में करार दिया है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि पटिशनर के हकूक शहजाद अकबर के किसी अमल से मुतासिर होंगे। अदालत आलिया ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी फैसले में करार दिया है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि दरख्वास्त गुजार के हकूक शहजाद अकबर के किसी अमल से मुतासिर हो रहे होंगे। मुशीर की काबिलियत के म्यार के हवाले से कोई वजाहत पेश नहीं की गई। रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद पेश नहीं किया गया कि शहजाद अकबर नैब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा है कि आर्टिकल 93 के तहत मुशीर मुकर्रर करना वजीर आजम की सवाबदीद है। वजीर आजम सदर को 5 मुशीर तैनात करने का मशवरा दे सकते हैं। मुशीर का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होने का मतलब ये नहीं कि वो वफाकी वजीर को हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शहजाद अकबर को बतौर मुशीर नैब या FIA में मुदाखलत करने से रोकते हुए करार दिया है कि रूल 55/4 के तहत वजीर, सेक्रेटरीज या नामजद अफसर हुकूमत के ऑफिशियल तर्जमान के तौर पर काम कर सकते हैं। मुशीर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो नैब को बिलवास्ता या बिला वास्ता कोई हिदायत जारी करे। मुशीर के पास ऐसा भी कोई इख्तियार नहीं कि वो FIA के इख्तियारात में मुदाखलत करे। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 6 मुहर्रमुल हराम। आज जिक्र है करबला के नन्हे शहीद शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का, जिनकी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में हुई। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम हुरमला लाइन के तीर से बाप के हाथों में ज़िबा हुए। भर भी असगर को मिल नहीं सका पानी, कह रही है ये दिल की आज मुझसे तुग़यानी। आज जिक्र है करबला के नन्हे शहीद शहजादा अली असगर का, जिनकी शहादत इमाम हुसैन के हाथों में हुई। हजरत अली असगर लाइन हुरमला के तीर से बाप के हाथों में ज़िबा हुए। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास में
जाऊं असगर में तेरी माँ। जी हाँ, हजरत अली असगर बाप की गोद में तीर से ज़िबा हुए। इंसानी तारीख में इससे पहले कमसिन शहादत की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जनाब अली असगर दश्ते बेमुरव्वत के सबसे कमसिन शहीद हैं। शहादत के वक्त शहजादे की उम्र सिर्फ 6 माह है। हक व बातिल के मार्के करबला में वक्त आखिर साहिबुल अम्र की आवाज हल मिन नासिर यंसुरना बुलंद हुई। उस वक्त तक बनी हाशिम के जवान और असहाब इमाम सब शहीद हो चुके। मर्दों में सिवाय बीमार करबला, सैयद सज्जाद और हजरत अली असगर के कोई न बचा। नुसरत इमाम में शहजादे ने खुद को गहवारे से गिरा लिया। ये वक्त था जब इमाम हुसैन तमाम साथियों के लाशें उठा चुके। जवान बेटे हम शक्ल पैगम्बर अली अकबर के जिगर से भी बर्छी निकाल चुके। इमाम वक्त की निगाह माँ की गोद में शशमाहे अली असगर की तरफ जाती है। बच्चा 3 दिन की भूख और प्यास से निढाल है। इमाम अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं और शहजादे अली असगर फौज अशकिया के सामने दश्ते नैनवा में लाते हैं। महीने वाले तुझको मेरा सलाम। फौज अशकिया समझी शायद अब कोई नहीं बचा। इमाम हाथों पर कुरान उठा लाए हैं, मगर ये क्या, ये तो मानिंदे सूरह कौसर इमाम वक्त की आवाज पर लब्बैक कहने वाले नन्हे अली असगर हैं। इमाम के सवाल पर फौज अशकिया में तलातुम बपा हो जाता है। मुर्दा दिल भी चीख उठते हैं। सूरत हाल खराब देखकर फौज यजीद के सबसे ताकतवर और निशानेबाज हुरमला को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हाय रे मुसलमानों, 6 माह के बच्चे के मुकाबिल हुरमला को भेजा और हुरमला वो तीर इस्तेमाल करता है जो बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए चलाया जाता है। जाने पिदर इमाम के हाथों पर मुस्कुराते हुए जान दे देता है। इस मौके पर इंसानी तारीख ने अजब मंजर देखा। हमारा सलाम हो 6 माह के उस जरी पर जिसकी मुस्कुराहट से मौत के माथे पर भी पसीना आ गया। दीन खुदा में कमसिन शहीद का खून जमीन और आसमां कबूल करने को तैयार नहीं। इसी कयामत के वक्त को शायर ने कुछ इस तरह बयान किया है। इनकार आसमां को है, राजी जमी नहीं, असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम का कहना है कि वाक़या करबला से इंसानियत, शुजात और सब्र इस्तकामत का दर्स मिलता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके असहाब ने अजीम कुर्बानी दी। हमें चाहिए मजलूम का साथ और जालिम के खिलाफ डट जाएं। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा महीना है जिसमें नवासे रसूल और उनके असहाब की अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। उलमाए कराम का कहना है कि करबला हक व बातिल के दरमियान मार्का था जिसमें हक को फतह हुई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी दी। ये वो बड़ा मार्का है जिसने हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींची है कि जो लकीर 1400 साल गुजर चुके हैं, ये गहरी और गहरी ही हो रही है। और हक क्या है? इमाम आली मकाम का उसवा जो है वो हक है। दीन मोहम्मद के लिए, शरीयत मोहम्मद के लिए और अल्लाह की वहदानियत के लिए, नाना की रिसालत के लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम सहाबा इज्जत अज़मत के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा हूँ। तो मेरे इस कुर्बानी को याद रखना है, क्योंकि इमाम हुसैन का मकसद दीन था। इसलिए तो शायद मैंने कहा शाह हुसैन, बादशाह आस्त हुसैन, दीन आस्त हुसैन, दीन पना आस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त हक के बिना ला इला आस्त हुसैन। उलमाए कराम का कहना था कि वाक़या करबला जालिम के खिलाफ खड़ा होने और मजलूम का साथ देने का दर्स देता है। तमाम इंसानियत को जालिम के खिलाफ खड़े होने का पैगाम देता है। वाक़या करबला जहाँ एक तरफ मजलूमियत की दास्तान है, वहीं जालिम और मजलूम के दरमियान तफरीक करने का भी हमें पैगाम देती है। उलमाए कराम का मजीद कहना था कि मुहर्रम उल हराम में हर मकतब फिक्र के अफराद शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं और इस आज़म को दोहराते हैं कि वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किसी कुर्बानी से दुरेक नहीं करेंगे। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने मैदान करबला में इस्लाम की बकार सरबलंदी के लिए दुनिया की अजीम तरीन कुर्बानी दी। काफिला हुसैनी में सब्र इस्तकामत के पैकर की ऐसी ख़वातीन शामिल थीं जिनकी कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। इस्लामाबाद से सैरिश खान रिपोर्ट करेंगी।
واقع کربلا میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ میدان کربلا میں ہونے والی شہادتوں کے بعد خواتین نے ہی دنیا کو حق اور باطل کے درمیان ہونے والی جنگ سے آگاہ کیا۔ عقیدت مند خواتین کہتی ہیں کہ اس وقت کی عظیم باکردار خواتین نے لازوال قربانیوں کی ایسی داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب زینب کا سب سے بڑا کردار ہے، جناب فاطمہ صغریٰ کا بہت بڑا کردار ہے، اور ظاہر ہے ہم سب کے لیے یہ ہستیاں جو مشعل راہ ہیں، بالکل ہماری تمام خواتین کے لیے ہمارے لیے بڑی درسگاہ ہے کربلا۔ خواتین کہتی ہیں کہ واقع کربلا خواتین کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ ہماری بیویاں جو جس طرح سے نکلی اور ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، تبھی تو ہم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے سب سے بڑی تو بات صبر اور پردے کی جو ہے بہت بڑی مثال ہے، وہ پردے ہمیں ان کی مشعل راہ ہیں۔ وہ خواتین کا کہنا تھا کہ واقع کربلا صبر، ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ شہداء کربلا کا عظیم پیغام خواتین نے ہی دنیا تک پہنچایا اور اس پیغام کو تا قیامت امر کر دیا۔ کیمرامین بلاول خورشید کے ساتھ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔ میدان کربلا میں وفا اور ایثار کی انمٹ تاریخ رقم کی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ذوالجناح نے دشمنوں کے تیر اپنے جسم پر کھا کر امام علی مقام کو بچانے کی کوشش کی۔ لاہور کے مرکزی جلوسوں میں برآمد ہونے والے ذوالجناح پر رپورٹ کریں گے اقلال حیدر۔ ذوالجناح 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 ذوالجناح۔ لاہور میں عاشورہ محرم کے مرکزی جلوس کے ساتھ برآمد ہونے والے شبیہ ذوالجناح لاہور کے نواب پیلس میں رکھے جا رہے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال آغا جان قزلباش خاندان کی جانب سے مقرر کردہ بٹو شاہ کے ذمہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہنشاہ بادشاہ، سردار بادشاہ، براق بادشاہ اور بادشاہ چاروں شبیہ ذوالجناح 1.25 سال کی عمر میں ان کے پاس آئے تھے۔ 3 سال کی عمر میں شبیہ ذوالجناح کو مرکزی جلوس میں برآمد کیا جاتا ہے۔ جی نا ذرا ٹریننگ کر رہے ہیں اور ان کو بہترین ان کی مالش، ان کا مساج وغیرہ ہو رہا ہے اور ان کو ہم مربے اور مکھن وغیرہ کھلا رہے ہیں کہ اس دفعہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ شبیہ ذوالجناح کی دیکھ بھال پر مامور افراد نے بتایا کہ ذوالجناح کی تیاری میں زیور خاص اقسام کی دھات سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم یہ نقطہ ڈالتے ہیں، اس کو نقطہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر زیگے لگتے ہیں، جیسے پھول سا بنا ہوتا ہے، اس کو ہم یہ گولڈ پلیٹڈ ہے اور اسی طرح سلور پلیٹڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی سواری ہے، ہم پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں، عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ قزلباش خاندان نے نثار حویلی سے مجالس اور شب عاشور کے مرکزی جلوس کا آغاز کیا۔ 10ویں محرم کو برآمد ہونے والے شبیہ ذوالجناح کو قزلباش خاندان کی سرپرستی میں نواب پیلس میں 200 سال سے رکھے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام میں جہاں کربلا کے شاہ سوار سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں ان کی سواری کو بھی خوب داد وفا دی جا رہی ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ اقلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ علی کی آنکھ کا نور حسین علیہ السلام، نبی کے دل کا چین حسین علیہ السلام۔ محرم الحرام میں دنیا بھر میں لبیک یا حسین پکارتے عزاداران امام حق کی انسانیت کے لیے دی جانے والی قربانی کا درس دہرا رہے ہیں۔ شہداء کربلا کی یاد میں دنیا بھر میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہداء کربلا کی یاد میں دنیا بھر میں مجالس اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران سے لے کر فلسطین اور مشرق وسطیٰ سے لے کر افریقہ تک ہر جگہ لبیک یا حسین کی صدا گونج رہی ہے۔ ایران کے شہر قم میں امام علی مقام کی قربانی، صبر اور استقامت کی یاد میں مجلس برپا ہوئی۔ عزاداران نے اہل بیت پر گزرنے والے مصائب کی یاد تازہ کی۔ عزاداران حسین نے شام، لبنان، فلسطین، کشمیر، عراق اور مشرق وسطیٰ میں جلوس و مجالس برپا کی۔ عزاداروں نے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائجیریا کے دارالحکومت میں مجلس عزا کا سلسلہ 1 محرم سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی ملکوں کے علاوہ یورپ، بیلجیم، آسٹریلیا اور نیو یارک سمیت دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی یاد میں مجالس اور جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ عزاداران حسین کے جلوس در حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی حق و باطل کے درمیان واضح لکیر اور انسانیت کی معراج ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حکومت کا گیس نرخوں میں کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہ کرنے کا فیصلہ، اوگرا کی سفارش مسترد، قیمتیں برقرار رکھنے کی ہدایات جاری کر دیں۔
ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस के लिए 6% सस्ती करने की सिफारिश की थी, जबकि सुई सदर्न के लिए गैस 2% सस्ती करने की तजवीज थी। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने मौजूदा कीमतें बरकरार रखने की एडवाइस ओगरा को भिजवा दी। ओगरा ने गुज़श्ता माह वफाकी हुकूमत को गैस सस्ती करने की तजवीज दी थी। जराये के मुताबिक हुकूमत ने गैस सस्ती करने की ओगरा सिफारिशात मुस्तरद कर दी हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर, वजीर आजम ने बड़ा फैसला कर लिया। आइंदा साल से गंदम की सपोर्ट पर एस बढ़ाने का हुक्म दिया है। ऑन शिराजी की रिपोर्ट। सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में इशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए हुकूमती इकदामात का जायजा लिया गया। वजीर आजम को सूबाई सतह पर कीमतों में कमी के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि टाइगर फोर्स की जानब से आटे और चीनी की कीमतों पर मालूमात पेश की गयी। वजीर आजम इमरान खान ने कीमतों के यकसा नफाज न होने का नोटिस लेते हुए नर्कनामों को अवेजा करने के एहकामात जारी कर दिए। वजीर आजम ने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटी नर्कनामों की दस्तयाबी यकीनी बनाए। इजलास में गंदम और चीनी की दस्तयाबी, कीमतों में इस्तेहकाम पर भी गौर किया गया। वजीर आजम ने किसानों के लिए बड़ा फैसला करते हुए आइंदा साल गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का हुक्म दे दिया। जराये का कहना है कि गंदम की जायद इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मकसद किसानों को फायदा पहुँचाना है। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी वजीर सैयद फखर इमाम कहते हैं गंदम का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसमें 64 लाख टन गंदम है। पहली खेप की आमद के साथ ही गंदम की कीमत में वाज़ेह कमी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि आटा गंदम का बहरान बुनियादी तौर पर चंद माह कबल शुरू हुआ। गंदम बहरान जखीरा अंदोजी की वजह से पैदा हुआ। जखीरा अंदोजों के पीछे चंद अफराद हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारी जो पहली शिप है आज कराची, अभी हमें पता चला कि आध घंटा पहले वो बर्थ हो चुकी है। और जैसे मेरे कॉलीग शिबली फराज साहब ने फरमाया कि उसका इम्पैक्ट आज ही कराची की मार्केट में आटे का आ गया फौरी तौर पर। हालांकि वो 63,000 टन की है, परसों 28 तारीख को भी दूसरी शिप आ रही है, तो तकरीबन 1,30,000 टन की तो एकदम दरामद हो जाएगी। अब जैसे ही ये व्हीट आएगी और जो अगले 2 माह हैं, सितंबर की एंड तक इंशाअल्लाह तकरीबन 4,88,000 टन 8 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। और मेरा ख्याल में ये पहला होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया कि पब्लिक सेक्टर टीसीपी के जरिए भी हम इंपोर्ट्स जो है कुछ करेंगे। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने कई एजाजात अपने नाम किए। शान मसूद के बाद कौमी टीम के मायनाज बैट्समैन बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में टॉम बेस्ट को चौका लगाकर 2000 रन का संग मील अबूर किया। बाबर आजम ने 28वें मैच में 2000 रन मुकम्मल किए हैं। बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में 5 सेंचुरियां और 14 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं। वो दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 में शामिल हैं। T20 में उनका पहला, वनडे में दूसरा और टेस्ट क्रिकेट में 5वां नंबर है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।